Good morning. In this lecture, we will study dipole moment, basically, most important topic of this chapter. Before discussing about the dipole moment, just review about the polar and non-polar covalent bonds. So there are two types of covalent bonds based upon their polarity or based upon the atoms attached to that single bond. If the bond is found between two similar atoms like hydrogen, chlorine, you can see. When hydrogen form a covalent bond, the shared pair of electron that lies exactly at the center. You can see here, shared pair of electron lie exactly at the center. Why it is so? Because both the hydrogen, they have a same electronegativity. So they attract the shared pair of electron towards itself. What is electronegativity? Tendency of bounded atom to attract the shared pair of electron toward itself. ओके तो अगर दोनों एटम सेम होंगे, ऑब्वियस है कि वो शेयर पेयर है, वो दोनों तरफ खींचा जाएगा और सेम ही स्ट्रेंथ से खींचा जाएगा, तो बिल्कुल सेंटर में रहेगा. और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म अराउंड द टू हाइड्रोजन एटम. देयर इज नो चार्ज ऑन एनी एटम. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर, नो पोलैरिटी. Second example is like chlorine. This is another non-metal. So when chlorine form a single bond, again both the chlorine have a same tendency to attract the shared pair of electron, and same electron cloud will be uniform again in this case. So this is another non-polar covalent bond. Now if we combine hydrogen with chlorine, what happened then? Now we have a dissimilar atoms with different electronegativity values. As chlorine is more electronegative than hydrogen, so the shared pair of electron, they do not lie exactly at the center. यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन they lies toward chlorine. Why it is so? Because chlorine has a more electron negativity, some more tendency to attract the shared pair of electron than hydrogen. So now the electron cloud will look like this. So here you can see that the electron cloud is more deviated toward chlorine. So around chlorine you can see the electron density, electron cloud is more. That's why it gets partial negative charge. That partial is represented by a delta sign. This is delta. This is called partial negative charge. And hydrogen, as you can see, electron density is small. Because chlorine ने अपनी तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा. और इस टाइप के बॉन्ड को जहां पे पोल्स बन जाए, नेगेटिव पॉजिटिव पोल, इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ टू एटम्स. नाउ हियर आर द एग्जांपल. यू कैन सी HCl इज पोलर, HF इज पोलर, HBr इज पोलर. तो ऑन विच फैक्टर पोलैरिटी डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यू कैन सी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लोरीन की है 3.5. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 1.4. ऐसे ही HF में देखिए, हाइड्रोजन है 2.1, फ्लोरीन है 4, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ? 1.9. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही उसकी पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी. HBr में और ज्यादा कम हो जाएगा डिफरेंस, तो उसकी पोलैरिटी और कम हो जाएगी. तो अगर हम HCl, HBr, HF, HI को अरेंज करें, तो HF इज द मोस्ट पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यू कैन से. अब इस पोलर, जो जितने भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उनकी पोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या उसको कंपेयर करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर सम न्यूमेरिकल वैल्यू. So what is dipole moment? Dipole moment express the polarity of the polar covalent bond on numerical scale. Okay. What is dipole moment? Is basically is a property, is a physical property which express the polarity of the bond on a numerical scale. And dipole moment is represented by mu. Mathematically, it is Q into D. So this mu is डाइपोल मोमेंट. अब ये न्यूमेरिकल स्केल पे
न्यूमेरिकल वैल्यू हम दे देंगे हर एक मॉलिक्यूल को कि उसकी पोलैरिटी इतनी है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि HF इज मोर पोलर देन HCl बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्यों जो है ये चार्ज है ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। CGS में इसका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऐसा यूनिट होता है, 4.8 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसका CGS में होता है। D है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आए थे उनके बीच में चार्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका Q प्लस H था, यहाँ पे है Q माइनस Cl था, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया है ना, दिस इज हियर D। D किसमें हो सकता है, आइदर बी D इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो डायपोल मूवमेंट जो है उसके SI यूनिट्स क्या होंगे अगर मैं पूछ लूं तो कूलम मीटर। CGS यूनिट क्या होंगे तो वो हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर बात। क्यू जो है उसकी वैल्यू ESU में मैंने बता दिया आपको। डिस्टेंस जो है वो 10⁸ के ऑर्डर में होता है। तो 1 डिबे, इसको हम डिबे की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, DEBY, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। तो 1 डिबे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इफ यू टेक इट 10⁻10 and distance between these two atoms is taken as 10⁻⁸, okay, centimeter. Then we will take it 10⁻⁸, so this become equal to 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और इसी का SI यूनिट में वैल्यू होगी इसकी 3.33 10⁻30 कूलम मीटर। So this is at 1 dB. So now we will express the value of all the dipole moment in the form of dB. For every bond, we will write the value in the form of dB. Like I took the example last during polar and non-polar covalent bond that we have HI, HBr, HCl, HF, ये था। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो है इसमें 0.4, 0.7, इसमें था 1.4, 1.9 ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी अगर डायपोल मूवमेंट हम लिखें तो 1.92 डिबे इसका आ जाता है, सबसे ज्यादा पोलर। 1.03 डिबे इसका आ जाता है, 0.78 डिबे and 0.38 dB. Now you can see we express the dipole moment, we express the polarity of the bond in the form of some numerical value. We give some numerical value to this, that its dipole moment is this. From this we can get an idea that more the value of this dB, more is the polarity. So what is dipole moment? Just give a numerical value to the polar molecules. This is a dipole moment is vector quantity. Vector quantity means having direction as well as magnitude. Direction, magnitude, both. So it is expressed by a single arrow like this. Cut at detail. Here we will write the more electronegative atom and this tail towards the less electronegative atom. Like in HF,
we will express it dipole moment as like this, because fluorine is more electronegative than hydrogen. Okay, like in water, you can see this is the water, and here a lone pair, the structure from Sapper model. How will you express the dipole moment in this case? Towards oxygen. See, like this. And here net dipole moment become this. This arrow that I will make it bold. This arrow represents the resultant dipole moment. Now, based upon this dipole moment value, and you will better understand the resultant dipole moment after some time, because there are a few examples. So, based upon the like molecules, like if the molecule is diatomic, triatomic, polyatomic, etc., how to express the dipole moment? Okay, तो dipole moment के हिसाब से दो केस बनते हैं. केस 1 for linear symmetrical molecules, mu is 0 dB, means they are non-polar. Okay. For polyatomic molecules, net dipole moment of the molecule is the sum of bond dipoles. So two types of molecule. If the molecule is linear, symmetrical means having regular geometry that we have studied in that Sapper model. The dipole moment is 0. For example, let's see for diatomic molecules, you can say that dipole moment is equal to bond dipole, because there is only one bond dipole moment. There is no question of that net dipole moment. Net dipole moment rises, and we see the direction when there is more than one atom in a molecule, like water, carbon dioxide, like that. So linear molecule like C double bond O is a linear. We know that carbon is sp hybridized. It is linear molecule. It's the bond dipole. There are two bond dipoles here. So carbon get positive and oxygen get negative. This oxygen get negative. How to express the bond dipole? In this case, you can express it like this, and here you can express it like this. So these two are the bond dipoles. And what will be the net dipole moment? Because bond dipoles, they are opposite to each other. Bond angle is 180. So both the bond dipoles, they cancel out, and the net dipole moment is 0 dB. So such type of molecules are non-polar. Take another example, OCS. So this is also linear, it's very resembles this carbon dioxide, but this again we have this carbon is a positive charge, this sulfur is negative, oxygen is negative. You can express the bond dipoles like this. Now in this case, that mu is not 0. Why? Because this bond is less polar than this bond. Bond dipoles are not exactly cancel out. In this case, because polarity of both the bond is same, atoms are same, the polarity is same. Here oxygen is less electronegative than sulfur. तो इन दोनों में डिफरेंस कम हो गया तो लेस पोलर, इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो मोर पोलर.
bond dipoles, they are at 180 degree, but here they are not cancel out exactly. So this molecule must have some net dipole moment. So question is that like CO2 and OCS, which is more polar and why? This is the NCERT question. You can express it by drawing these structures. Like you can write, in this case, at both the bond dipoles have the same polarity, the dipole moment, bond dipoles get cancelled out 100%. Here, both the polar bonds, they are not exactly polar, they are not same polarity, they have a different polarity. That's why bond dipoles are not exactly cancelled out. So that's why it have net dipole moment. Next linear molecule is your BeF2. Again you can see Be attached to 2-fluorine. So what is the charge of beryllium? Partial positive. Obviously because fluorine is more electronegative. So bond dipole is like this. Okay. So from here you can see that both the bond dipoles, they are again at 180 degree. So this angle is 180 degree. So this bond dipole and this bond dipole, they cancel out. Then mu become equal to 0 degree. Again next symmetrical molecule is BF3. BF3 is not linear, but it is symmetrical. It has a trigonal planar geometry. As we have studied in that receptor model, the boron atom is sp2 hybridized. So now how to express the bond dipoles? One for this bond, second for this bond, third for this. Now all the bond dipoles, they are opposite to each other. They are moving away from the center, exactly at the same angle, 120 degree. So they cancel out each other. Again mu equal to 0 degree. Now in such type of molecule, one question in NCERT is there like BeF bond is polar, but BeF2 molecule is non-polar. Why? The answer is simple, like Be single bond F is polar because there is electronegativity difference, but BeF2 is non-polar because BeF2 is a linear molecule and both the bond dipoles, they exactly cancel out each other. That's why the net dipole moment is 0. Another example, CH4. CH4 is again a symmetrical molecule having all the bond angles exactly 109 degree, 28 minutes. So here this carbon has a negative as compared to hydrogen. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है. तो bond dipoles, they lies towards center like this. So all the bond dipoles, they are pointing towards the center. Net dipole moment is not in any direction because it is a vector quantity. If the net dipole moment is not in any particular direction, then its value is again 0. So again methane is a non-polar. If we replace these, like if take example of CCl4, carbon tetrachloride, we know that this is a polar, non-polar. So by dipole moment we can explain it like this. So this is your carbon tetrachloride. So now chlorine has a negative charge because it is a more electronegative than carbon. Now how to draw the bond dipoles? They are pointing away from one common center at the same angle in all direction. तो कार्बन से निकल रहे हैं एरोस, dipoles, bond dipoles, and they are pointing away at the same angle. All the angles are 109.28. So there is not a net, कोई भी particular direction net dipole moment की नहीं बन रही. It means this, the net dipole moment is again 0. So all these are non-polar molecules. If the molecule is linear and symmetrical, then that molecule is non-polar. Okay. If we compare the, this is a very important question, कई बार आ चुका है नीट में भी, जेईई में भी.
किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है? CH Cl3 लिख देते हैं, CH2 Cl2 लिख देते हैं, HCl3 और CCl4। अब CCl4 का तो हमें पता है दैट इज अ नॉन पोलर, उसकी डाइपोल मूवमेंट जो है 0। सबसे ज्यादा किसकी होगी ये हमें अभी देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी। अब इसको ऐसे माइंड में मत अज्यूम करो कि ये ऊपर है ये 3 नीचे है। नो, दे आर ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे हैव बॉन्ड एंगल, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। यहाँ पे बिकॉज दिस इज वन डिमेंशन वी कांट एक्सप्रेस द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज इन 3D। ओके, तो डोंट मेक अ माइंड दैट देयर इज 1 क्लोरीन अबव एंड 3 बिलो। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करें, बॉन्ड डाइपोल, तो 1 2 3 एंड 4, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी हो जाती है 0, अभी हमने किया था। अब अगर इसमें से इसके ऑपोजिट में मैं लिखता हूं मीथेन, मीथेन का भी हमने किया था कि मीथेन की डायरेक्शन सबकी कहां जा रही है, अंदर को जा रही है, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव लाइक दिस, तो इसकी भी 0 थी। अब इसके हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते जाएंगे तो ये सब बन जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप एक क्लोरीन लगाओगे, नो केयरफुल अबाउट दिस, जब आप एक क्लोरीन लगाओगे तो ये डाइपोल आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज तो दिस इज द मोस्ट पोलर आउट ऑफ ऑल दीज। Why not this with 2 chlorine or 3 chlorine? Because when you suppose replace one more chlorine, suppose you replace this also with a chlorine, the bond dipoles इसकी भी पोलर डायरेक्शन में होगी। तो अब क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ दोनों क्लोरीन एक दूसरे की कैंसिल करेंगे, बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब यहाँ पे एक था तब सिर्फ एक डायरेक्शन में था, अब क्या है कि ये एक डायरेक्शन में तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और को रिप्लेस कर देंगे तो उसकी बॉन्ड डाइपोल जो है वो और कम हो जाएगी। जितने ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड डाइपोल्स होंगे उतनी ही उसकी डाइपोल मूवमेंट कम होती जाएगी। तो इसीलिए जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद जब हम मीथेन में एक क्लोरीन लगा देते हैं, सिर्फ एक क्लोरीन, तब उसकी डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, ठीक है, नंबर 2 पे केस 2 ग्रुप में जो आते हैं, नॉन लीनियर एंड अनसिमेट्रिकल molecules have dipole moment. तो जो लीनियर नहीं है, ओके, लाइक वाटर, it's not linear, it's a band structure. So was oxygen has a partial positive negative charge and hydrogen has a partial positive charge. So bond dipole is expressed in this direction. Unsymmetrical means with irregular geometry, having bond pair as well as lone pair according to Sepper model. Net dipole moment is expressed by a red arrow. This arrow show your net dipole moment. This direction. Okay, so its dipole moment become equal to 1.84. So mu is equal to 1.84. Highly polar molecule. This is also possible in case of your SO2 structure.
SO2 structure has this type of structure. You know that as S is sp3 hybridized, sp2 hybridized triangular planar with one lone pair. How to express the bond dipole? You express the bond dipole in this direction. Where will be the net bond dipole? Net bond dipole will be in this direction. So it's also polar. New value is 1.63. Now next we are going to compare nitrogen compound. This is also very important as NCERT may be here. Like out of NH3 and NF3, which is more polar and why? Okay, so N पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे H3 N F3 सेम ही ज्योमेट्री होगी दोनों की, टेट्राहेड्रल एंड जब शेप होगी पिरामिड। डिफरेंस कहाँ है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा है। चार्ज लिख लें, इस पे नेगेटिव, इन पे क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। अब इन पे नेगेटिव और यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो बॉन्ड डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। इसमें बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में रहेंगे, इसमें बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में रहेंगे। इसका बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में, इसका बॉन्ड डाइपोल इस डायरेक्शन में। ओके, अब इस केस में नेट डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ऑल आर इन वन डायरेक्शन, बट हियर यू कैन सी these three are in downward, means in one side, not downwards. These are in one side. This is pyramid now. This is not a tetrahedral. So they are in 107 degree so bond angle is there. So they are in moving in downwards, you can say, and this one is upward. So there is somewhere you can see that the bond dipoles get cancelled out. Somewhere in small amount bond dipoles get cancelled out. So that's why this ammonia that is more polar, as mu is 1.46 degree और इसकी डाइपोल मूवमेंट तो बहुत ही कम है because bond dipole get cancelled. So out of these two, ammonia is more polar. Reason is, like in ammonia, all the bond dipoles are in one direction, but you can see in case of NF3, the bond dipoles get cancelled out somewhere. So when they cancel out, then its bond dipole get decreased. Clear? So these are the two, you can say, the applications also. Now next we will discuss the applications of dipole moment. So this is also one of the applications. Like we can recognize the molecule from the dipole moment. If the dipole moment is zero, we can say that the molecule may be linear, may be symmetrical. And if the molecule has some dipole moment value, then we can say that molecule is non-linear or unsymmetrical. This is general idea you can get from the value of dipole moment. That if dipole moment is zero, you can say that molecule may be linear or may be asymmetrical. Okay. Next is applications of dipole moment. Number one, to decide the polarity of molecule. To decide the polarity of molecule. क्या मतलब हुआ इसका? जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? पोलर। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर।
Okay. Second is to determine the geometry of molecule. To determine the geometry of molecule, जैसे मैंने बताया था कि अगर डायपोल मोमेंट उसकी 0 से ज्यादा है, ओके, तो मींस अगर लीनियर है तो इसमें दो केसेस आएंगे। अगर सपोज करो डायपोल मूवमेंट 0 आ रही है तो वो मॉलिक्यूल लीनियर एंड सिमेट्रिकल, ओके, और रेगुलर ज्योमेट्री है उसकी। लीनियर एंड सिमेट्रिकल दोनों होना चाहिए, सिर्फ लीनियर नहीं, बिकॉज लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसकी डायपोल मूवमेंट 0 है। लीनियर ये भी है, इसकी डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। तो लीनियर एंड सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा, अगर म्यू की वैल्यू मान लो 0 से ज्यादा आ रही है तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल जो है वो अनसिमेट्रिकल है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, इररेगुलर। तो ऐसे डायपोल मूवमेंट से हमें एक आइडिया लग जाता है। जैसे वाटर लीनियर नहीं है, इसकी डायपोल मूवमेंट है, वी शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो अमोनिया, इसमें भी पिरामिडल शेप है, तो ये भी लीनियर नहीं है। ऑल दीज एग्जांपल्स। थर्ड जो एप्लीकेशन है, हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं इसमें डायपोल मूवमेंट की हेल्प से, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। टू डिटरमाइन, थर्ड इज टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक करेक्टर। कौन सा बॉन्ड कितना पोलर है, उसमें आयनिक का कितना आयनिक करेक्टर है, कितना उसमें कोवलेंट करेक्टर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल ले ली HCl मॉलिक्यूल की। HCl मॉलिक्यूल में जो चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, उसकी वैल्यू है 4.8 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट CGS में ले रहे हैं। और जो इनमें बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों में, यहां से लेके यहां तक जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, तो ये Q की वैल्यू, ये D की वैल्यू 1.27 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इससे हम निकाल लेंगे उसकी डायपोल मूवमेंट। कौन सी डायपोल मूवमेंट है ये जो हम निकाल रहे हैं, ये उसकी आ जाएगी थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट, थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो म्यू किसके इक्वल होता है, Q इंटू डी। Q कितना आ गया भाई, 4.8 10⁻10 1.27 10⁸8। सॉल्व करेंगे तो ये 6.09 डी डिब्बे में आ जाएगा ना, चेंज कर दिया उसको। तो ये आपकी थ्योरेटिकल डायपोल वैल्यू ऑफ म्यू है। दिस इज योर थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट जो होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस बॉन्ड इज 100% आयनिक। कब होनी चाहिए, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस बॉन्ड इज 100% आयनिक। बट एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट, जो एक्चुअल में डायपोल मूवमेंट है वो कितनी है उसकी, 1.03 डिग्री। ओके, सो परसेंटेज आयनिक करेक्टर फिर कैसे निकलेगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऊपर आ जाएगी आपकी म्यू एक्सपेरिमेंटल, नीचे आ जाएगी आपकी म्यू थ्योरेटिकल। ओके, इनटू कर देंगे 100, तो 1.03 6.09 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16.9% जो है आंसर इसका आ जाएगा। इसका मतलब जो HCl बॉन्ड है वो 16.9% आयनिक है, बाकी वो क्या है, कोवलेंट है। ऐसे हम उसकी जो वैल्यू है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट।
अब डायपोल मोमेंट में हमने ये अज्यूम कर लिया पहले कि ये बॉन्ड 100% आयनिक है। 100% आयनिक में क्या होगा कि चार्ज इतना होगा, बिकॉज ये चार्ज तब होता है जब H टूट के H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये चार्ज तब होता है। तो वो कब होगा, जब ये टूटेगा कब, जब हम इसको मान लेंगे कि दिस HCl इज आयनिक, 100% आयनिक। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है हमारी थ्योरेटिकल है, हमने अज्यूम किया है। एक्चुअल डायपोल मोमेंट इसकी हमें पता है 1.0, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम ऐसे इसका निकाल सकते हैं। फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस। अब सिस एंड ट्रांस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आपका, टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस। ओके, फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक में आएगा। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको पता तो चल ही जाएगा सिस कौन सा किसको कहते हैं। अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक ये है और दूसरा आप इसको देखें तो आप फटाफट से समझ तो जाएंगे, लेकिन पूरी डिटेल के लिए हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे इसको। अब अगर आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसमें क्लोरीन एक साइड पे है डबल बॉन्ड के, इसमें क्लोरीन 180 पे है, इतना तो नजर आ रहा है ना, बहुत आसान है ये तो। ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को कंपेयर कर लेते हैं, सेम साइड पे आ रहे हैं, इसमें क्लोरीन जो है वो ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का नाम हो गया सिस। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो इसका नाम हम लिख देंगे सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और इसका नाम हम लिख देंगे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ध्यान रखना नाम आपका डाइक्लोरो से शुरू होता है। सिस एंड ट्रांस आईयूपैक नेम का पार्ट नहीं है, इसकी आप सी कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन डाइक्लोरो की डी जो है वो कैपिटल होनी चाहिए। तो म्यू। अब डायपोल मोमेंट हम देखें, जो मेन काम है हमारा, सिस की डायपोल मोमेंट वो कह रहा है 1.90 है और ट्रांस की डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। वो क्यों? अब देखें, ये बॉन्ड पोलर है, इसकी बॉन्ड डायपोल ऐसे होगी, ये बॉन्ड भी पोलर है, इसकी बॉन्ड डायपोल ऐसे होगी। नेट बॉन्ड डायपोल हमारी जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। दिस इज नेट बॉन्ड डायपोल। इधर देखें तो इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, नेट डायपोल मोमेंट कैंसल आउट होगी बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। तो ऐसे हम सिस और ट्रांस को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस। अब इसमें जो हमने मेन पॉइंट्स जो पढ़े मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट थिंग इज डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो हमने की थी एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। तो HF की डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि H और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे डायपोल मोमेंट भी कम होगी। तो मतलब क्या हुआ? डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेकंड है डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हुआ भाई? तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो उसके हिसाब से HF, HCl, HBr और HI, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसकी डायपोल की जो है वो सीक्वेंस हो गया। सेकेंड है डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा हैं, जैसे HF, H2O, NH3, तो इसकी जो बॉन्ड डायपोल मूवमेंट है वो ऐसे वेरी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें लोन पेयर 3 है, इसमें लोन पेयर 2 है, इसमें लोन पेयर 1, तो लोन पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तीसरी जो चीज है वो है हमारा डायपोल मूवमेंट 1/θ। थीटा इज एंगल। अब इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं बेंजीन को। ये बेंजीन वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं अभी, ऑर्गेनिक में ज्यादा समझ आएगा। ये 3 तरीके से लग सकते हैं। आइसोमर्स हैं, शायद 10th में पढ़े भी हों आपने। ये पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं इनको, ध्यान से देखो। फर्स्ट में पोजीशन 1 2 है, इसमें पोजीशन 1 2 3 है, 1 3, इसमें पोजीशन 1 4 है। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम पैरा। पी ऑर्थो, मेटा, पैरा, आइसोमर्स हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है डायपोल मूवमेंट कम हो रही है। तो डायपोल मूवमेंट फर्स्ट में देखिए, एंगल है 60 डिग्री, यहां पे एंगल है आपका 60 डिग्री, यहां पे एंगल हो गया 120 डिग्री, यहां पे एंगल हो गया 180 डिग्री। तो ऐसे ही डायपोल मूवमेंट जो है वो वेरी करेगी। आप सीधे भी देख सकते हो, ये एक डायरेक्शन में ऑलमोस्ट, इसकी डायपोल मूवमेंट हम जो है वो ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे ना, ऐसे बॉन्ड को, तो नेट डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। ये थोड़ा सा ऑपोजिट चला गया और ये टोटली ऑपोजिट चला गया। आप देखो, तो लास्ट वाले की तो डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगी। तो इसीलिए 1/θ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 3 पॉइंट हो गए। डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। आगे देखते हैं डायपोल मूवमेंट। जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉर्मल शेप सच एज लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, उनकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है। जैसे जितने भी हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लीनियर है चाहे वो सिमेट्रिकल है, जैसे Cl2 है ना 0, N2 है इसकी भी 0, ये तो लीनियर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। O2 है उसकी भी 0, CO2 लीनियर है उसकी भी 0, BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, इसकी भी 0, CCl4, SiCl4, ये सभी की डायपोल मूवमेंट क्या लेनी है हमें 0। मॉलिक्यूल हैविंग डिस्टॉर्टेड मींस इरेगुलर ज्योमेट्री, उसमें म्यू जो है 0 से ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल हैविंग डिस्टॉर्टेड शेप्स लाइक एंगुलर, पिरामिड, सीसॉ, दे शो सम डायपोल मूवमेंट। जैसे वाटर की कुछ डायपोल मूवमेंट है, SO2 की कुछ डायपोल मूवमेंट होगी, H2S की डायपोल मूवमेंट है, NH3 की डायपोल मूवमेंट है, SF4 जो सीसा शेप थी इसकी भी डायपोल मूवमेंट है, बिकॉज ये डिस्टॉर्टेड है। और लास्ट में आ जाता है हमारा 6th कि डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस इज मोर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस। तो ये था ओवरऑल समरी ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो अब हमारा डायपोल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है पूरा सेपल मॉडल से। पहले उसको अच्छे से पढ़िए फिर इसको करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज जेईई मेन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू।